السلام علیکم۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل روح اردو میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک فہرست شروع کی ہے اردو ادب کے مصنفین اور شعراء کی۔ اسی فہرست میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک اور اردو ادب کے بہترین شاعر سے متعلق ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں آج کی ہماری کلاس کو ہم لوگ شروع کریں گے، جو کہ اس عظیم الشان اردو کے شعراء کا سگنیچر شعر ہے۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا۔ اس شعر کے ذریعے سے ہی ہم پہچان چکے ہیں کہ آج کی ہماری کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ کون سے شعراء ہیں، تو وہ ہیں میر تقی میر۔ جی ہاں، یہ ان کا سگنیچر شعر ہے۔ اس شعر کے ذریعے سے اور بھی کافی بےحد عمدہ غزل انہوں نے لکھی ہے، کافی عمدہ اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ فی الحال یہ ایک شعر ان کی پہچان کے طور پر، تعارف کے طور پر ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ میر تقی میر اردو ادب کے وہ عظیم الشان شعراء ہیں جن کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا بھی ہے۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری کا جوہر اس قدر دکھایا ہے کہ ان کے ہم عصر شعراء، ان کے بعد والی صدی کے شعراء اور اردو ادب میں آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا لوہا مانا جاتا ہے۔ اسی عوض میں ان کو جو لقب دیا گیا ہے وہ ہے شہنشاہ غزل۔ میر تقی میر کو اردو ادب میں شہنشاہ غزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک اور ان کا لقب ہے خدائے سخن۔ اس طرح کے اور بھی لقب و القاب سے ان کو پکارا گیا ہے، جو آگے چل کر کے ہم لوگ اس کلاس میں دیکھیں گے۔ میر کی عظمت ان کے ہم عصر شعراء، ان کے بعد کی صدی والے شعراء نے بھی قبول کیا ہے، اور ان کا لوہا، ان کی قابلیت، ان کا جوہر کو قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ غالب جن کو اردو ادب میں ایک بہت بڑی شاعر کے طور پر عظمت حاصل ہے، جو بہت بڑے غزل کو شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے تک میر تقی میر کا لوہا مانا ہے۔ اس کلاس میں ہم لوگ میر تقی میر سے متعلق ایک مختصر سا خاکہ دیکھیں گے اور کچھ اشعار بھی دیکھیں گے۔ حالانکہ ان اشعار کی تشریح ان کلاس میں ہم لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ جب بعد میں الگ سے میر تقی میر کی غزل کی کلاس لی جائے گی، اس میں ان کے اشعار کی تشریح بھی وہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے۔ فی الحال ہم لوگ میر تقی میر کا ایک مختصر خاکہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی کلاس کچھ اس طرح سے ہے، جس میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ میر کی پیدائش۔ میر کی پیدائش 1722 میں آگرہ میں ہوئی ہے۔ حالانکہ کچھ بکس اور گائیڈ میں ان کی پیدائش سے متعلق 1721 بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ میر تقی میر کی جو پیدائش ہے وہ 1722 میں آگرہ میں ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی وفات سے متعلق معاملات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میر تقی میر کی وفات 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر سے متعلق دو چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی ہے، ایک تو ان کی پیدائش اور دوسرا ان کی وفات۔ پیدائش ہم لوگوں نے یاد کر لی ہے کہ پیدائش ان کی 1722 میں آگرہ میں ہوئی تھی اور وفات 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ میر تقی میر شروع سے ہی لکھنؤ سے وابستہ نہیں رہے تھے۔ میر تقی میر شروع میں دبستان دہلی سے وابستہ تھے۔ بعد میں دہلی کا چراغ جب ٹمٹمانے لگا تو انہوں نے دہلی کو الوداع کہا اور دہلی چھوڑ کر کے لکھنؤ آئے تھے آصف الدولہ کے زمانے میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر کا جو اصل نام ہے یا صحیح نام ہے وہ ہے محمد تقی۔ میر تقی میر کا اصل نام ہے محمد تقی، اور ادب میں انہوں نے جس تخلص کا استعمال کیا ہے وہ ہے میر۔ تو اس طرح سے ان کا پورا نام ہو جاتا ہے میر تقی میر۔ یہاں پر ہم کچھ لقب اور القاب جو ان کو دیے گئے ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میر تقی میر کو
शहंशाह गज़ल के नाम से जाना जाता है, जो कि हकीकत में है भी सही। इन्होंने अपना जौहर गज़ल निगारी में इस कदर दिखाया है कि आज तक भी हम लोग मीर तकी मीर के गज़ल गोई में मुरीद हुए हुए हैं। इसके अलावा मीर तकी मीर को खुदाए सखन, माफ़ कीजिए खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर, फितनाए रोज़गार, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद भी कहा गया है। ये तमाम तर लक़ब अलक़ाब मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखने की, ध्यान रखने की बात है, वो ये है कि मीर तकी मीर कुनूती के शायर हैं, कुनूतियात के शायर हैं, लेकिन कुनूतियात के इमाम नहीं है। कुनूतियात और यासियात का इमाम फ़ानी को कहा गया है। तो इस तरह से हमने जान लिया है कि फ़ानी को कुनूतियत का इमाम कहा गया है। फ़ानी जिनका असल नाम या पूरा नाम शौकत अली खान है, ये कुनूतियत के इमाम के तौर पर जाने गए हैं। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर और जान लेते हैं कि कुनूतियत होता क्या है, कुनूतियत से मुराद क्या है, क्योंकि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कुनूतियत का इमाम, कुनूती शायर। तो क्योंकि हम लोग उर्दू के टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू से मुताल्लिक़ अदब का हम लोग मुतालिया कर रहे हैं, इसलिए हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन अल्फाज का जो बीच बीच में उर्दू अदब में आते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कुनूतियत का मतलब, उसका मायने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। कुनूतियत का असल मानी है दर्द गम, सोज गराज, अपने दुख दर्द का इजहार करना। तो मीर तकी मीर से बड़ा कोई शायर नहीं हुआ है जिसने दर्द गम से मुताल्लिक अशआर लिखे हैं, दर्द गम की शायरी की है। इसलिए मीर तकी मीर को कुनूती शायर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने दर्द को, अपने गम को अपने अशआर के ज़रिए से जाहिर किया है, इसलिए इनको कुनूती शायर कहा जाता है। जबकि कुनूतियत का इमाम है फ़ानी, और कुनूतियत का के मायने भी हमने यहाँ पर जान लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मीर से मुतालिक और अहम मालूमात क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे कि इनके जो वालिद हैं, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद अली। ये इनके वालिद का असल नाम है, सही नाम है। हालांकि इनको अली मुत्तकी के नाम से भी जाना गया है। तो हमने देखा है कि मीर तकी मीर के वालिद का नाम है मोहम्मद अली, और इनकी उर्फियत है अली मुत्तकी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। इनके वालिद का नाम जान लेने के बाद में अब हम देखेंगे कि मीर तकी मीर का मूल जगह, यानी इनका मूल स्थान, इनके बुजुर्गों का कि मूल जगह क्या थी। हम देखेंगे कि इनके जो अजदाद हैं वो हिजाज से हिंदुस्तान में आए थे। ये इम्तिहान के लिहाज से इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि मीर के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। तो ये लोग हिजाज से हिंदुस्तान आए थे, और हिंदुस्तान में कहाँ आए थे, तो हिंदुस्तान के दक्कनी इलाके में आए थे और अहमदाबाद में आकर के आबाद हुए। अहमदाबाद के बाद में इनके आबा और अजदाद अकबराबाद, जिसको हम लोग आगरा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आकर के ये आबाद हुए। तो हमने देख लिया है कि मीर तकी मीर के जो बुजुर्ग थे, जो इनके आबा और अजदाद थे, वो हिजाज से दक्कन यानी कि अहमदाबाद आए और यहाँ से अकबराबाद यानी कि आगरा में जाकर के रहने लगे, यहाँ आबाद हुए। अब हम देखेंगे मीर तकी मीर की इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई थी और इनके असातिज़ा कौन थे। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दौर कदीम में जो इब्तदाई तालीम है वो शुरुआत में वालिदैन के ज़रिए, उसके बाद में उनके एक उस्ताद उनको घर पर ही आके पढ़ाया करते थे। ये तमाम जो दौर कदीम के जो शोरा हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, उन सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब उनका सवानी हयात का मुतालिया करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी सबकी इब्तदाई तालीम घर पर ही, या तो वालिद के ज़रिए या वालिदा के ज़रिए, और उसके बाद में जो उनके उस्ताद होते हैं उनको घर पर ही आके पढ़ाया करते थे। इसके बाद में उनको किसी मदरसा या मकतब में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। तो यही बात मीर से मुतालिक भी है कि मीर की इब्तदाई तालीम उनके वालिद के ज़रिए ही
हुई थी और इनके वालिद का नाम हमने देख लिया है। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद अली, उर्फियत थी अली मुत्तकी, जिनको अली मुत्तकी के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी इब्तदाई तालीम इनके वालिद के ज़रिए और इसके अलावा वालिद के साथ ही इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह खान के ज़रिए हुई थी। तो इनके इब्तदाई जो उस्ताद हैं वो है सैयद अमानुल्लाह खान। आगे देख लेते हैं कि मीर की परवरिश किन्होंने की। अब देखिए, क्योंकि हमारे तमाम तर जो नोट्स हैं वो शॉर्ट में है, पूरी की पूरी सवानी हयात को हम लोगों ने विस्तार के तौर पर क्लास में शामिल नहीं किया है, केवल उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया है जो इम्तिहान से मुतालिक हैं, इम्तिहान के नज़रिए से अहम है। तो जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था उसके बाद में इनकी जो परवरिश की थी वो भी अजीम, अपने दौर के अजीम शायर रहे हैं, जिनका नाम है सिराजुद्दीन खान आरजू। आरजू इनका तखल्लुस था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद में मीर इनके पास दिल्ली आ गए थे। इनका नाम था सिराजुद्दीन खान आरजू। इन्होंने मीर की परवरिश की थी। अब एक और चीज़ जो देखने के लिए आई है वो ये है कि कुछ किताबों में सिराजुद्दीन खान आरजू को मीर के सौतेले मामू बताया गया है और कुछ में सौतेले खालू बताया गया है। अब ये दोनों ही चीज़ सिमिलर नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। फिलहाल हम लोग ये याद कर लेते हैं कि मीर की परवरिश इनके वालिद के इंतकाल के बाद में किसने की थी। तो हमको ये याद रखना है कि इनकी परवरिश सिराजुद्दीन खान आरजू ने की थी, जो कि दिल्ली में रहते थे। मीर दिल्ली में इन्हीं के पास आ गए थे और इन्हीं के पास मीर की परवरिश हुई थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि शहर दिल्ली का मीर की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, मीर की ज़िंदगी में शहर दिल्ली की क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर तलाश माश यानी रोज़गार की तलाश में दिल्ली आए थे। सबसे पहली बात जो दिल्ली से मुतालिक, जो मीर से मुतालिक है वो ये है कि मीर तलाश माश के लिए आगरा से दिल्ली आए थे। मीर इस वक्त कहाँ थे? आगरा थे। आगरा से दिल्ली आए थे और दिल्ली किनके पास आए? तो उस वक्त के अजीम शायर जिनका नाम है सिराजुद्दीन और तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं आरजू। तो ये सिराजुद्दीन खान आरजू के पास आकर के रहे थे। अगली बात मीर से मुतालिक ये है कि दिल्ली में एक नवाब थे जिनका नाम था शमशामुद्दौला। इनका नाम है शमशामुद्दौला। इन्होंने मीर के लिए 1 रुपया वजीफा मुकर्रर कर दिया था। मीर के लिए 1 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। अगली बात इस तरह से है, अगली बात यह है कि मीर ने दिल्ली को क्यों छोड़ा। तो इसका जवाब हो जाएगा कि उस दौर में मुगलिया सल्तनत का चिराग टमटमा रहा था, अपने आखिरी दौर में चल रहा था और उस वक्त दिल्ली में काफ़ी लूटपाट और हमले वगैरह हो रहे थे। दिल्ली उस वक्त उजड़ रहा था, बस रहा था। इन हालातों में शोरा, मुसन्निफीन और उदबा का वहाँ रहना गैर मुमकिन तो नहीं हुआ था, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो गया था। तो काफ़ी यहाँ के जो हुनरमंद थे, जो कलमकार थे, वो दिल्ली को छोड़ करके कुछ लोग लखनऊ की तरफ चले गए, कुछ लोग मुर्शिदाबाद की तरफ चले गए, कुछ लोग अजीमाबाद की तरफ चले गए। उनमें से मीर है कि मीर ने दिल्ली छोड़ा और लखनऊ को अपनाया। तो अब्दाली के हमले के वक्त मीर ने दिल्ली को खैराबाद कहा और लखनऊ चले गए। अगली बात यह है कि मीर का ताल्लुक, जब भी ये सवाल पूछा जाए कि मीर का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, तो हमको ये ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि मीर का नाम दबिस्तान दिल्ली में लिया जाता है, ना कि दबिस्तान लखनऊ में। हालांकि मीर ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त लखनऊ में बिताया था। मीर को लखनवी शायर के तौर पे भी जाना जाता है, लेकिन जब दबिस्तान से मुतालिक सवाल पूछा जाए, जब दबिस्तान से मुतालिक सवाल परीक्षाओं में, इम्तिहानात में पूछा जाए, तो हमको उसका आंसर करना है दबिस्तान दिल्ली। तो मीर का जो ताल्लुक है वो दबिस्तान दिल्ली से था। इस तरह से हमने ये देखा है
कि मीर की ज़िंदगी में दहली की क्या अहमियत थी और मीर दहली से किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम देखेंगे कि मीर का ताल्लुक़ लखनऊ से क्या था, लखनऊ मीर की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। तो लखनऊ से मीर का रिश्ता कुछ इस तरह से है कि मीर 1782 में, ज़्यादातर बुक्स में 1782 1782 ही रहा है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि 1782 में मीर लखनऊ आए थे और किसकी दावत पर आए थे, तो वहाँ के नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर आए थे। ये सवाल आरपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए हमको खास तौर से इसको याद रखना है। उर्दू में आरपीएससी का पैटर्न हमेशा ये रहा है कि वो अपने सवालात को रिपीट करती है, ऑप्शन को सवाल बना करके और सवाल को ऑप्शन बना करके। तब हमने ये जान लिया है कि मीर 1782 या 81 इस दौर में लखनऊ आए थे नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर। आसिफुद्दौला ने मीर के लिए 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर किया था। जिन नवाब की दावत पर मीर लखनऊ आए थे उनका नाम है आसिफुद्दौला और इन्होंने मीर के लिए 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। एक और बात यहाँ पर जानने की ये है कि किसी बात पर मीर का नवाब आसिफुद्दौला से अनबन हो गई थी, मन मुटाव हो गया था, तो मीर ने आसिफुद्दौला के दरबार से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया था, अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि मीर का लखनऊ से जो अहम ताल्लुक है वो ये है कि मीर की वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई। मीर की वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई। यहाँ तक हमने लखनऊ से मुतालिक बातें ये जानी है कि एक तो मीर 1782 में नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ आए थे। नवाब आसिफुद्दौला ने 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था और 1810 में ही लखनऊ में मीर की वफ़ात हुई थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के जो भी फैक्ट्स हमने देखे हैं खाका के तौर पर, मुख्तसर शॉर्ट नोट्स के तौर पर, वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। एक बार हम लोग यहाँ तक की क्लास का फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अभी तक हमने देखा है कि मीर की पैदाइश 1722 में आगरा में हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि इनकी वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई। फिर हमने देखा कि मीर का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम था मोहम्मद तकी और इन्होंने जो तखल्लुस इस्तेमाल किया था वो था मीर, यानी अपने नाम से मुतालिक ही इन्होंने अपना तखल्लुस भी रख लिया था और इस तरह से इनका पूरा नाम हो गया था मीर तकी मीर, शहंशाह गज़ल। फिर हमने देखा कि इनको किन किन लक़ब से पुकारा गया है, तो वो है सबसे अहम शहंशाह गज़ल, खुदाए सुखन। ये सवाल आरपीएससी ने अपने इम्तिहानात में पूछा हुआ है कि खुदाए सुखन के लक़ब से किस शायर को जाना जाता है, तो उसका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। अगला इनका लक़ब है नाखुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर। इससे मुतालिक तमाम मालूमात हमने हासिल कर ली है कि कुनूतियत का इमाम फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है शौकत अली खान। अगला है फितनाए रोज़गार। ये लक़ब इनको इनके सौतेले भाई ने दिया है, जिनका नाम हम अभी आगे चल कर के क्लास में देखेंगे। अगला है रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म। रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म। इसके बाद हमने देखा कि मीर के जो वालिद हैं उनका नाम है मोहम्मद अली, उर्फियत था इनका अली मुत्तकी। इन दोनों ही नामों से इनको जाना गया है। मीर के आबा और अजदाद हिजाज से हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान के दक्कनी इलाके में रहे थे। शुरू में अहमदाबाद रहे और उसके बाद इन्होंने आगरा का रुख किया, यानी
अकबर आबाद में रहने लगे। मीर की इब्तदाई तालीम इनके वालिद के ज़रिए हुई, साथ ही सैयद अमानुल्लाह खान भी इनके इब्तदाई तालीम के दौर में उस्ताद रहे हैं। फिर हमने देखा कि मीर की परवरिश किन्होंने की, तो मीर की परवरिश सिराजुद्दीन खान आरजू ने की थी। उस वक्त ये दिल्ली के एक बहुत बड़े नामचीन शायर थे। आगे हमने देखा कि मीर का दिल्ली से क्या ताल्लुक था, तो मीर दिल्ली आने की वजह ये थी मीर की दिल्ली आने की वजह ये थी कि ये रोजगार की तलाश में यानी तलाश माश में आगरा छोड़ करके दिल्ली आए थे। दिल्ली में शमशामुद्दौला नाम के शख्स ने, इन नवाब ने जो भी उस वक्त रहे थे, इन्होंने 1 रुपया मीर के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया था। जब दिल्ली उजड़ रही थी, दिल्ली में मुगलिया सल्तनत का चिराग टमटमा रहा था, मुगल सल्तनत अपने आखिरी वक्त में चल रही थी, उस वक्त मीर ने दिल्ली को छोड़ दिया था। फिर हमने देखा कि मीर से मुतालिक अगर ये सवाल पूछा जाए कि मीर का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, तो मीर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। इसके बाद हमने मीर का लखनऊ से रिश्ता और ताल्लुक देखा था। हमने जाना कि मीर 1782 के आसपास नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर लखनऊ आ गए थे। नवाब आसिफउद्दौला ने मीर के लिए 200 रुपया माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था और लखनऊ में ही मीर ने 1810 में वफात पाई थी। अब यहाँ से हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मीर की अदब से मुतालिक मीर के अब हम देखेंगे कि मीर की कलमकारी से मुतालिक क्या क्या अहम मालूमात मीर से मुतालिक हो सकती है, कौन कौन से सवाल इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं जो अहम हो सकते हैं। जैसे पहला कि फैज़ मीर क्या है। पहला ही फैक्ट है फैज़ मीर, तो ये क्या है, मीर ने अपने बेटे फैज़ की तालीम के लिए फारसी में इस तख्लीक को अंजाम दिया था। फैज़ मीर क्या है, मीर ने अपने बेटे फैज़ की तालीम के लिए इस तसनीफ को लिखा था, दर्ज किया था, तहरीर किया था। इसके बाद अब हम देखेंगे इनका अगला कारनामा जो है जिक्र मीर, और ये फारसी ज़बान में है। जिक्र मीर किस ज़बान में है, तो हमको याद रखना है कि जिक्र मीर फारसी ज़बान में है। और जिक्र मीर क्या है, तो जिक्र मीर मीर की आप बीती है, मीर की ऑटोबायोग्राफी है। आप बीती यानी ऑटोबायोग्राफी। मीर ने अपनी जीवनी को जिक्र मीर के नाम से तहरीर किया है और ये फारसी ज़बान में। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जिक्र मीर की ज़बान क्या है, तो जिक्र मीर फारसी में तहरीर की गई है। अब हम देखेंगे कि जो जिक्र मीर है, क्योंकि मीर ने तो इसको फारसी में लिखा था, तो इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया है। इसका उर्दू तर्जुमा करने वाली शख्सियत है निसार अहमद फारूकी। इन्होंने जिक्र मीर का उर्दू तर्जुमा किया है। एक बार मैं क्लास को थोड़ा सा इस पीडीएफ को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि जिक्र मीर जो मीर की ऑटोबायोग्राफी है, इसको मीर ने फारसी में लिखा था। इसका उर्दू तर्जुमा किन्होंने किया है, तो इसका उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया है। निसार अहमद फारूकी ने किया है। अब हम देखेंगे कि मीर का जो तमाम तर उर्दू कलाम है वो किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना गया है, तो मीर का उर्दू कलाम कुलियात मीर के नाम से जाना गया है। ये मीर का तमाम तर कलाम जो है वो कुलियात मीर के नाम से शाई हुआ है, इस नाम से जाना गया है। अब हम देखेंगे कि मीर ने कुल कितने दीवान जारी किए थे, कितने दीवान लिखे हैं, तो उससे मुतालिक बात यह है कि मीर के कुल 7 दीवान थे। ये बात तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सब लोग जानते ही हैं कि मीर के कुल 7 दीवान थे। उन 7 में से 6 उर्दू के थे और जो बाकी बचा एक वो इनका फारसी दीवान था।
इस तरह से हमको इस बात को याद रखना है। ये भी सवाल आरपीएससी या नेट के इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि मीर के कुल कितने दीवान थे, तो 7 दीवान हो जाएंगे। मीर के उर्दू दीवान कितने थे, तो 6 हो जाएंगे। और मीर ने कितने फारसी दीवान तहरीर किए हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा 1, और कुल हो जाएंगे 7 दीवान। आगे देख लेते हैं। ये जो तज़किरा मीर ने तहरीर किया है, ये इम्तिहान के लिहाज से, हालांकि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हमने वही फैक्ट, वही मालूमात यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश की है जो इम्तिहान के लिहाज से काफ़ी अहम है। यह भी सवाल पूछा ही गया है जिसको हमने अपने नोट्स में यहाँ पर शामिल किया है। मीर ने एक तज़किरा तहरीर किया था जिसका नाम है नुकातुश्शोरा। काफ़ी अहम सवाल है। आप सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार मीर साहब की तस्वीर क्यों लगाई गई है। तो ये तस्वीर 2 वजहों से लगाई गई है। जो पहली वजह है, सबसे बड़ी वजह तो वही है कि हम लोग सीधा इससे कनेक्ट कर पाएंगे। इस तस्वीर को देख करके हम लोग आसानी से याद कर पाएंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो बात हुई साइकोलॉजिकल। और दूसरी बात ये है कि आजकल मैं अपनी क्लास में से शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, तो इसी वीडियो में से मुझे शॉर्ट्स भी निकालने हैं। तो जब आप शॉर्ट्स के तौर पर इसको देखेंगे तब ये तस्वीर वहाँ पर लगी हुई आपको नज़र आएगी, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही दो वजह हैं, इसकी वजह से मैंने जगह जगह इनकी तस्वीरों को लगा दिया है और हम इनसे रिलेट भी कर पाएंगे, कनेक्ट भी कर पाएंगे। मीर का जो तज़किरा है उसका नाम है नुकातुश्शोरा। बहुत अहम बात है, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझने की चीज़ है। एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात है ये कि मीर का जो तज़किरा है वह नुकातुश्शोरा, ये 1752 में मंजर आम पर आया था और इसकी जो ज़बान थी वो फ़ारसी थी। इस तज़किरे की ज़बान क्या थी? फ़ारसी। इस लिहाज से यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये कि मीर ने जो तज़किरा नुकातुश्शोरा लिखा है वो उर्दू का ही सबसे पहला तज़किरा है। उर्दू शोरा का, माफ़ कीजिए, उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा है, लेकिन ये फ़ारसी में है। इस बात को ख़ास तौर से हमको याद रखना है कि मीर का जो तज़किरा है, इसका नाम है नुकातुश्शोरा, वो फ़ारसी में है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ अहम सवाल ये है कि ये उर्दू शोरा का सबसे पहला, वेरी फर्स्ट तज़किरा है जो मीर ने नुकातुश्शोरा के नाम से 1752 में फ़ारसी ज़बान में तहरीर किया। अब हम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है और फ़ारसी में है, तो उर्दू शोरा का पहला तज़किरा जो उर्दू में है वो किन्होंने तहरीर किया और उसका क्या नाम है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका नाम है तज़किरा गुलशन हिंद। और ये किन्होंने तहरीर किया है? तो ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने तहरीर किया है। और ये 17, माफ़ कीजिए, 1800 या 1801 के आसपास मंजर आम पर आया था। यहाँ पर 2 बहुत बड़े, बहुत अहम सवाल तैयार हुए हैं। एक तो ये कि मीर साहब ने कौन सा तज़किरा तहरीर किया, तो उसका नाम हो जाएगा नुकातुश्शोरा। 1752 में मंजर आम पर आया, फ़ारसी में था। अहम सवाल ये है कि उर्दू शोरा का, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है, तब तो आंसर हो जाएगा, अगर सवाल ऐसे पूछा जाए कि उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा मीर साहब के ज़रिए जो तज़किरा लिखा गया है नुकातुश्शोरा, ये हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि उर्दू अदब का उर्दू में तहरीर किया हुआ सबसे पहला तज़किरा कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुलशन हिंद, जिसके तख्लीक़कार हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़। मुझे लगता है कि इतना ज़ोर अगर दे करके मैंने इसको पढ़ाया है तो ज़रूर ही आप लोगों के समझ में आया होगा। यहाँ से अब हम लोग क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब है मीर अब है मीर की मसनवियों, मसनवियाँ से मुतालिक
کچھ اہم باتیں جو اس طرح سے ہے کہ میر کی تحریر کردہ مصنویاں، جن میں پہلا ہے خواب و خیال، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، معاملات عشق. تو ان چار میں تو عشق آ رہا ہے، یہاں سے ہم لوگ یاد رکھ سکتے ہیں دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، معاملات عشق. اگلا ہے ساقی نامہ اور ہولی. اس طرح سے ہم نے یہاں پر میر سے متعلق کچھ اہم مصنویوں کو دیکھا ہے. اب جو بات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ میر سے متعلق ان ضروری اہم معلومات کے بارے میں ہے جو ایگزام میں ڈائریکٹ ہی پوچھی جا سکتی ہے، اور جن کو ہم کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ون لائنر کے طور پر ہم لوگوں کو میر کے لیے یاد کر لینا چاہیے. یہ سوال اگر یا تو اب تک پوچھے جا چکے ہیں، اور اگر نہیں پوچھے گئے ہیں تو پورا چانس ہے کہ یہاں سے سوال بن سکتے ہیں. میر سے متعلق اہم معلومات میں اس طرح سے ہیں. پہلا یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد میں، جب میر صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں میر اپنے سوتیلے ماموں، جن کا نام ہم نے اوپر دیکھ لیا ہے، جو اس وقت کے دہلی کے بہت بڑے شاعر تھے، جن کا نام تھا سراج الدین خان آرزو، یعنی اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے پاس دہلی چلے آئے تھے. ایک تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، دوسرا ان کو روزگار کی تلاش تھی. تو یہ دونوں ہی وجہ ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد یہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو صاحب کے پاس آ گئے تھے. اس کے بعد میں ہے کہ میر کا تعلق کس دبستان سے تھا. تو میر کا تعلق دبستان دہلی سے تھا. خاص طور سے یاد رکھنے کی چیز ہے، یہاں پر ہم لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں کیونکہ میر نے اپنی زندگی کا کافی وقت لکھنؤ میں بھی بتایا ہے. تو یہاں پر ہم کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. میر کی گنتی جب دبستان کے لحاظ سے کی جائے گی تو میر کا تعلق دبستان دہلی سے ہی بتانا ہے. اب مجھے امید ہے کہ یہ بار بار ریوائز بھی ہو چکا ہے، بار بار آپ لوگوں کے سامنے آ ہی چکا ہے، تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اب ہم اس سوال میں تو کم سے کم غلطی نہیں کرنے والے ہیں. پھر ہے میر نے کس وقت دہلی کو خیر آباد کہا. تو احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت میر نے دہلی کو خیر آباد کہہ دیا تھا. آگے دیکھ لیتے ہیں میر سے متعلق اہم معلومات ون لائنر کے فارم میں کیا کیا ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ میر لکھنؤ کب گئے. تو میر 1782 میں 1782 میں نواب آصف الدولہ، خاص طور سے یاد رکھنا ہے اس نام کو، 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے اور دہلی کو الوداع کہا تھا. اگلی اہم جو معلومات ہے وہ میر سے اگلی اہم بات میر سے متعلق یہ ہے کہ میر واسوخت کے موجد رہے ہیں. میر جو ہیں واسوخت کے موجد رہے ہیں، اور ان کو واسوخت کا موجد کہنے والے ہیں اردو ادب کے بہت بڑی شخصیت جن کا نام ہے محمد حسین آزاد. یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ میر کو واسوخت کا موجد کس نے کہا ہے. تو محمد حسین آزاد نے کہا ہے. واسوخت اور میر سے متعلق اگلی بات یہ ہے کہ میر نے واسوخت میں مسدس کی حیت پر کام کیا ہے، یعنی واسوخت کو مسدس کی حیت میں لکھنے والے پہلے شاعر اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہے؟ میر. یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ واسوخت میں سب سے پہلے مسدس کی حیت میں کس نے تحریر یا شاعری کی ہے. تو اس کا جواب ہو جائے گا میر تقی میر. کیونکہ ہم لوگ میر تقی میر ٹاپک کو ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ تمام تر سوالات کے جواب میر تقی میر ہی تو ہونا ہے، لیکن سوال اس طرح سے نہیں آنے والا ہے. سوال الٹا بھی آ سکتا ہے، گھما کر کے بھی آ سکتا ہے. اب ہمارے ذہن میں ایک بات سامنے آ رہی ہوگی کہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ میر واسوخت کے موجد ہیں اور محمد حسین صاحب نے ان کو واسوخت کا موجد کہا ہے، لیکن واسوخت ہوتا کیا ہے؟ میرا آپ لوگوں سے سیدھا سوال ہے، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ واسوخت کیا ہوتا ہے. اردو ادب
कि सिन्फ वासोख्त के माने क्या है। चलिए, एक अच्छा टीचर होने के नाते फिलहाल यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वासोख्त क्या होता है। उर्दू अदब के पार्ट शायरी की सिन्फ वासोख्त का मतलब ये है कि जब शायर अपने महबूब की बेरुखी, बेएतनाई और बेइत्तेफाती और जुल्म और सितम से तंग आ जाता है, तो तंग आकर के जो तहरीर शायरी में जो अल्फाज लिखता है, जो शेर लिखता है, वही क्या है, वासोख्त। इसमें ऐसा होता है कि अपने महबूब की बेरुखी, उनके जुल्म सितम, बेइतनाई और इग्नोर करने की वजह से शायर तंग आ जाता है और उसको चिढ़ाने, उसको जलाने के लिए दीगर यार दीगर की तारीफ करने लगता है, यानी अपने महबूब को छोड़कर के किसी और के हुस्न जमाल की तारीफ करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके मन में जलन के एहसासात, जज्बात पैदा होंगे और वो फिर से मेरी तरफ वापस आ जाएगा। इस तहरीर को, शायरी की इस सिन्फ को वासोख्त कहा जाता है और इस सिन्फ के मौजद हैं मीर तकी मीर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर खास तौर से शामिल किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिन्फ वासोख्त समझ में आ गई होगी। सिन्फ वासोख्त जिसमें शायर अपने महबूब के जुल्म सितम, उसकी बेइतनाई, उसकी बेरुखी से तंग आ जाता है और जो शेर जो अशआर कलमबंद करता है उसको चिढ़ाने, उसको जलाने और उसको वापस बुलाने की उम्मीद में, वो अशआर ही वासोख्त कहलाते हैं। इसको मौजू, इसकी शिनाख्त मौजू से की जाती है, ना कि हैयत से, है ना। यहाँ पर शायरी को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मौजू के एतबार से और दूसरा होता है हैयत के एतबार से। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वासोख्त, ये मौजू के एतबार से इसकी शिनाख्त की जाएगी। अगला फैक्ट मीर से मुतालिक है कि मीर ने जगह बीती को आप बीती बना दिया। मीर ने जगह बीती को आप बीती बना दिया। इसके बाद अगली बात मीर से मुतालिक ये है कि मीर जुनू में मुब्तला होकर क्या कहलाए थे। तो जब मीर जुनू में मुब्तला हो गए थे, अपना दिमागी तवज़ुन थोड़ा सा उनका हल्का हो गया था, उस वक्त उन्होंने जो तहरीर की, जो कलमकारी की, उस वक्त ये जिंदानी व जंजीरी कहलाए थे। जिंदानी व जंजीरी कहलाए थे। मीर जुनून में मुब्तला होकर जिंदानी व जंजीरी कहलाए थे। अगली बात है कि मीर ने अपने जुनून का जिक्र, ये बात किसी और ने नहीं, मीर ने खुद कही है कि अब मैं जुनून में मुब्तला हो गया हूँ, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी मशनवी, माफ कीजिए अजान हो रही है, थोड़ी देर हम लोगों को क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। चलिए, हम लोग देख रहे थे कि मीर ने अपने जुनून का जो जिक्र है वो अपनी मशनवी ख्वाब ख्याल में किया है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि मीर जुनून में तो मुब्तला थे, तो हमको मालूम ही है, और जुनून में मुब्तला होकर के जिंदानी व जंजीरी कहलाए थे, जिंदानी व जंजीरी कहलाए थे। लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी किस तहरीर, किस तख्लीक में किया है, तो इस बात को उन्होंने अपनी मशनवी ख्वाब ख्याल के जरिए से बताया है। इसके बाद आगे देखेंगे कि मीर ने अपने सौतेले मामू या खालू को, यानी खान आरजू को क्या कह के पुकारा है। तो उन्होंने शायर खान आरजू को यके चश्म कह के पुकारा है। शायर खान आरजू को यक चश्म कह करके पुकारा है। इसके अलावा इन्होंने शायर हातिम को भी इन्होंने आशनाए बेगाना कह के पुकारा है। अब फिर से वही बात आप लोगों के सामने आ रही है जो वासोख्त से मुतालिक बात हमने ऊपर की थी कि मीर वासोख्त के तो मौजूद हैं ही, इसके अलावा मीर ने वासोख्त किस हैयत में कही है। तो मीर ने ही सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में, किस हैयत में,
میر نے ہی سب سے پہلے مسدس کی حیت میں واسوخت لکھی ہے۔ بے حد عمدہ، بے حد بہترین، گہرائی سے پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اگر ایگزامینر اتنی گہرائی میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واسوخت کے موجد بھی میر تقی میر ہے، یہ محمد حسین آزاد نے ان کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ واسوخت میں اگر مسدس کی حیت کا کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ ہے میر تقی میر۔ پھر سے ایک سوال آپ لوگوں کے من میں آ رہا ہوگا کہ مسدس کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بہت شارٹ میں یہاں پر بتا رہا ہوں۔ تو مسدس کو جاننے سے پہلے ہم لوگ ایک بار یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اردو شاعری کو دو خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں حیت کے اعتبار سے، اور دوسرا موضوع کے اعتبار سے۔ یہ دونوں ہی شاعری کے پارٹ ہیں، شاعری کے خانے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے حیت کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت، شکل و صورت شاعری کس انداز میں، انداز نہیں، کس شکل اور کس صورت میں لکھی گئی ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ حیت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی شکل اور صورت دیکھ کر کے جس صنف کو پہچانا جائے تب تو وہ ہو جائے گی حیت کے اعتبار سے، اور جب موضوع دیکھ کر کے پہچانا جائے کہ اس کا موضوع کیا ہے تب وہ ہو جائے گا موضوع کے اعتبار سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اب اس کا موضوع دیکھ کر کے، موضوع پڑھ کر کے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نعت ہے، یہ حمد ہے۔ تو جس نظم کی شناخت موضوع سے ہو، اس کی موضوع سے جس نظم کی شناخت ہو تو وہ موضوع کے اعتبار سے ہو جائے گا، اور جس کا آکار، شکل و صورت دیکھ کر کے پہچانا جائے وہ حیت ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے جان لیا ہے کہ شاعری کو دو خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو ہے حیت کے اعتبار سے اور دوسرا ہے موضوع کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مسدس کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مسدس کیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاعری کی وہ صنف جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، 1 2 3 4 5 6، ایک بند 6 مصرا، اگلا بند پھر 6 مصروں کا آئے گا، 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس طرح سے کتنے بھی بند ہو سکتے ہیں۔ وہ نظم جو 6 مصروں کے بند کے طور پر لکھی گئی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ مسدس۔ یعنی کہ مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہو جائیں گے؟ 6 مصرے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، میں بتا دیتا ہوں کہ مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت کو مقرر کر دیا گیا ہے نا۔ حالانکہ مرثیہ مسدس سے پہلے بھی، حیت مقرر کرنے سے پہلے بھی لکھے گئے ہیں، بعد میں بھی لکھے گئے ہیں، لیکن خاص طور سے مرثیہ کی جو صنف ہے، جو حیت ہے، وہ کیا ہوگی؟ مسدس ہوگی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے دونوں خانے کے دونوں پارٹ حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے، ساتھ ہی مسدس کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو مسدس کی بات یوں چلی تھی کہ میر تقی میر نے جو واسوخت لکھی ہے، میر تقی میر نے جو واسوخت لکھی ہے وہ مسدس کی حیت میں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اتنی بڑی بات ہم لوگوں نے صرف اس ایک لائن کا مطلب جاننے کے لیے کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں میر کا کلام۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے میر سے متعلق، صرف میر ہی یہ کام کر سکتا ہے، کر سکتے تھے، اور میر نے ہی یہ کرشمہ کر کے دکھایا ہے کہ میر درد و غم، سوز و غراز کے بے مثال نمونہ ہے۔ میر کا جو کلام ہے وہ درد و غم، سوز و غراز
का बेमिसाल नमूना है। हालांकि मीर के अलावा भी बहुत सारे शोरा ने इस मौजू पे, दर्द गम वाले मौजू पे काम किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा शाहकार नमूना छोड़ा है वो मीर ने छोड़ा है। यहाँ तक कि गालिब, नासिक, ज़ोक, हाली, उन तमाम शोरा ने मीर के इस असर को कबूल किया है और मीर का लोहा माना है कि मीर दर्द और गम के सबसे बड़े शायर हैं। इस वजह से मीर को जो लक़ब दिया गया है, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि मीर को कुनूती शायर का लक़ब दिया गया है। वो इसी वजह से दिया गया है कि मीर दर्द और गम के सबसे बड़े शायर हैं। एक और चीज़ अगर बहुत गहराई से पूछा जाए तो ये सवाल भी बन सकता है कि मीर को कौन सी सदी का शायर कहा जाएगा, या मीर के नाम कौन सी पूरी एक सदी कर दी गई है। तो वो सदी है कि मीर को 18वीं सदी, ये पूरी की पूरी सदी मीर के नाम कर दी गई है। अब हम लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीर की अजमत, उनकी मकबूलियत, उनका मुकाम क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी सदी, 18वीं सदी मीर के नाम कर दी गई। पूरी बात इस तरह से है कि मीर को 18वीं सदी, गालिब को 19वीं सदी और इकबाल को 20वीं सदी का शायर तस्लीम किया जाता है। इस बात को भी हम लोगों को याद रखना है। ये बात गालिब से मुतालिक भी सवाल पूछा जा सकता है और इकबाल से मुतालिक भी सवाल पूछा जा सकता है। मीर 18वीं सदी, गालिब 19वीं और इकबाल 20वीं सदी के शायर थे। ये पूरी पूरी सदियां इनके नाम तस्लीम कर दी गई थी। आगे देख लेते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, एक बार उसका जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी सुकून हो जाएगा कि जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो बात आप लोगों तक सही सलामत पहुँच रही है और आप उसका अर्थ ग्रहण यानी कि उसका मायना समझ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से छोड़ा था हमने, देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कि फैज़ मीर क्या है, इस कारनामे को क्यों तहरीर किया गया। तो फैज़ मीर ने अपने बेटे फैज़ की तालीम के लिए इसको फ़ारसी ज़बान में तसनीफ़ किया था। फिर हमने देखा कि ज़िक्र मीर क्या है। तो ज़िक्र मीर फ़ारसी में मीर के ज़रिए तहरीर की गई मीर की आप बीती है फ़ारसी ज़बान में। इसके बाद हमने देखा कि अगर ये फ़ारसी में है तो इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया है। तो इसका उर्दू तर्जुमा करने वाली शख्सियत है, उनका नाम है निसार अहमद फ़ारूकी। मीर का उर्दू कलाम किस नाम से शाये हुआ है। तो वो हो जाएगा कुलियात मीर के नाम से मीर का तमाम कलाम शाये हुआ है। फिर हमने देखा कि मीर के कुल कितने दीवान रहे हैं। तो मीर के कुल 7 दीवान मंजर आम पर आए हैं, उनमें से 6 उर्दू के थे और एक फारसी का था। इस तरह से मीर के कुल 7 दीवान होते हैं। फिर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल के तौर पर देखा था कि मीर ने जो तज़किरा तहरीर किया है उससे मुतालिक क्या सवाल बन सकता है। एक तो ये कि उर्दू शोरा का सबसे पहला सबसे अवलिन तज़किरा कौन सा है। तो वो हो जाएगा नुकातुश शोरा और इसके खालिक हैं मीर। ये 1752 में मंजर आम पर आया था, हालांकि ये फारसी ज़बान में था। इस लिहाज से ये उर्दू शोरा का पहला तज़किरा तो है लेकिन फारसी ज़बान में है। तो उर्दू शोरा का उर्दू ज़बान में पहला तज़किरा भी हमने याद किया था, उसका नाम है गुलशन हिंद। तज़किरा गुलशन हिंद और उसके खालिक थे मिर्ज़ा अली लुत्फ़, जो कि 1800 या 1801 के आसपास मंजर आम पर आया था। इसके बाद हमने देखा है मीर की मसनवियाँ, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमने देखा कि मीर से मुतालिक अहम सवालात, अहम मालूमात, जानकारी क्या हो सकती है। तो ये था कि मीर ने आगरा को क्यों छोड़ा। एक तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और दूसरा तलाश माश की वजह से मीर ने आगरा छोड़ा और दिल्ली आए। देख लेते हैं। वालिद के इंतकाल के बाद मीर ने अपने सौतेले मामू, जिनका नाम था खान आरजू, उनके पास चले आए थे और तलाश माश भी एक वजह थी। दूसरा, मीर ने से मुतालिक अहम बात हमको याद रखनी है कि मीर से मुतालिक जब सवाल पूछा जाए कि मीर किस दबिस्तान से मुतालिक ताल्लुक़ रखते हैं तो वो हो जाएगा दबिस्तान है दिल्ली। अगला है
دہلی کی لوٹ پاٹ اجاڑ تباہی کی وجہ سے دہلی کو خیرآباد کہا اور لکھنؤ میں آ کر کے بس گئے۔ لکھنؤ کب آئے، کن کی دعوت پر آئے، یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ میر 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ آئے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میر واسوخت کے موجد ہیں۔ میر کس کے موجد ہیں؟ واسوخت کے۔ اور یہ بات کنہوں نے کہی ہے؟ تو یہ بات محمد حسین آزاد نے کہی ہے کہ میر واسوخت کے موجد ہیں۔ اس کے علاوہ میر نے واسوخت کو سب سے پہلے مسدس کی حیت میں لکھنے کا کام بھی انجام دیا ہے۔ واسوخت کیا ہوتی ہے، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں جان لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میر وہ شخص ہیں، وہ شاعر ہیں جنہوں نے جگہ بیتی کو آپ بیتی بنا دیا، اس احساس کو جنم دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میر جنون میں مبتلا ہو گئے تھے اور جنون میں مبتلا ہو کر کے زندانی و زنجیری کہلائے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میر نے اپنی اس بات کا اظہار کس تخلیق میں کیا ہے، تو میر نے خود یہ بتایا ہے کہ وہ جنون میں مبتلا تھے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر نے خان آرزو کو یکا چشم کہا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے حاتم کو بھی آشنائے بیگانہ کہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میر واسوخت کے موجد ہونے کے ساتھ ایک اور اہم سوال اس میں یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ میر ہی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسدس کی حیت میں واسوخت کو لکھنا شروع کیا۔ میر کا کلام درد و غم، سوز و غراض کا بے مثال نمونہ ہے، اس وجہ سے میر کو قنوتی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ میر کے نام ایک پوری صدی کر دی گئی ہے۔ میر کو 18ویں صدی کا، غالب کو 19ویں صدی کا اور اقبال کو 20ویں صدی کا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ میر کو کن لوگوں نے کیا لقب دیا ہے، اس سے متعلق کیا اپنے خیال کا اظہار کیا ہے، کیونکہ میر کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو تھے نہیں، میر کی عظمت بہت بڑی ہے اردو غزل، اردو شاعری کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد حسین آزاد جو کہ خود آقائے اردو ہیں۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ یہ بات پہلے سے جانتے تھے یا جانتے ہی ہوں گے۔ میر سے متعلق محمد حسین آزاد نے جو بات کہی ہے، اور یہ بات کہنے والے ہیں محمد حسین آزاد، اور یہ خود آقائے اردو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے میر کو واسوخت کا موجد کہا ہے۔ ایک بات اور کہ یہ جو کلاس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ چینل روح اردو پر پڑھ رہے ہیں، تو کوئی اس کی کاپی کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر سے اپلوڈ کرنے کی، کاپی کرنے کی حماقت پلیز مت کریے کوئی بھی۔ پھر ہے محمد حسین آزاد کے بعد اگلے آ رہے ہیں بقا۔ انہوں نے کیا زبردست بات کہی ہے میر کے لیے۔ انہوں نے میر کو چور کہا ہے۔ انہوں نے بقا وہ شاعر ہیں، وہ شخصیت ہے جنہوں نے میر کو چور کہا ہے۔ کب کہا ہے، کس میں کہا ہے؟ تو مثنوی مینار میر میں انہوں نے میر کو چور کہا ہے۔ اگلے ہیں رام بابو سکسینہ۔ یہ میر کے بارے میں اپنے اظہار خیال اس طرح سے کرتے ہیں، انہوں نے میر کو اردو کا شیخ سعدی کہا ہے۔ انہوں نے میر کو اردو کا شیخ سعدی کہا ہے۔ قائم چاندی پوری جو میر کے ہم عصر ہیں۔ اچھا میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ سوال امتحانات میں پوچھا گیا ہے کہ میر کے ہم عصر کون ہیں، تو اس کا جواب وہاں پر تھا قائم چاندی پوری، پھر قائم چاند پوری۔ تو انہوں نے میر سے متعلق کس خیال کا اظہار کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے میر کو میر خمیر کہا ہے۔ 4 لوگوں کے بارے میں ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہے۔ ایک تو محمد حسین آزاد جو خود آقائے اردو ہیں، انہوں نے میر کو واسوخت کا موجد کہا ہے۔ بقا نے میر کو چور کہا ہے۔ مثنوی مینار میر میں رام بابو سکسینہ کا خیال ہے کہ میر اردو کے شیخ سعدی ہیں۔ اگلا ہے قائم چاند پوری نے میر سے متعلق بات کہی ہے، انہوں نے میر کو میر خمیر کہا ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، یہ بات ہم اوپر کر کے آ چکے ہیں کہ میر کے سوتیلے بھائی نے ان کو فتنہ روزگار کہا ہے،
اور उन सौतेले भाई का नाम है मोहम्मद हाफिज मोहम्मद हसन। इनका पूरा नाम है हाफिज मोहम्मद हसन, ये इनके सौतेले भाई थे। यहाँ से आगे देख लेते हैं कि ख्वाजा अहमद फारूकी साहब जो है मीर से मुतालिक क्या ख्याल रखते हैं। इन्होंने कहा है कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मर्शिया बन गई। ये सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है, खास तौर से याद रखना है इसको कि किसने मीर से मुतालिक ये बात कही है कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मर्शिया बन गई। तो उसका जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद फारूकी साहब। इन्होंने 3-4 ख्यालात जाहिर किए हैं मीर से मुतालिक, वो इस तरह से हैं। एक और बात जो इन्होंने मीर से मुतालिक कही है वो ये है, ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है कि मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे, शायर रहे हैं। ये बात भी ख्वाजा अहमद फारूकी ने कही है। फिर इन्होंने कहा है ख्वाजा अहमद फारूकी ने कि मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं, क्योंकि ये दर्द गम के सबसे बड़े शायर थे। इस वजह से इनको कुनूती शायर कहा गया है। और इस बात को तस्लीम कर रहे हैं फिराक साहब, फिराक गोरखपुरी। इन्होंने कहा है कि मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। एक और बात इन्होंने जख्म, मरहम और चोट से मुतालिक कही है कि मीर के अशार दाखिलियत, मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। तो हम लोग ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं कि जख्म, मरहम, चोट, सबसे बड़े हिंदुस्तानी, ये तमाम बातें ख्वाजा अहमद फारूकी साहब ने कही। अब देखिए मीर खुद अपने बारे में क्या कह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है और अपने आप को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शायर तस्लीम कर लिया है, क्योंकि लोगों ने तस्लीम कर लिया था। उस वक्त इनके मुकाबले में कोई शायर थे नहीं। मीर ने कहा है कि मेरे अशार तमाम शहर में फैल गए, मेरे अशार तमाम शहर में फैल गए और तमाम छोटे बड़ों के कान और ज़बान तक पहुँच गए। ये बात मीर ने खुद अपने लिए कही है, अपनी शायरी के लिए कही है। अब हम देखेंगे कि जो नासिक हैं उन्होंने मीर से मुतालिक नासिक, गालिब, मुसहफ़ी, हाली जैसे आला दर्जे के शायरों ने मीर से मुतालिक जो बातें कही है, मीर का लोहा माना है, मीर के जौहर और काबिलियत को कबूल किया है। इन अल्फाज में अपनी बात को कहा है नासिक साहब ने कि शुबह नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, शुबह नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं। ये बात किसने कही है, नासिक ने। लेकिन यही मिसरा फिर से गालिब ने भी अपनी शेर में दोहराया है। गालिब ने भी इसी बात, गालिब ने दरअसल 2 शेर मीर से मुतालिक और भी कई कहे होंगे, फिलहाल हम लोगों ने 2 अशार को शामिल किया है। गालिब ने भी इस मिसरे को फिर से दोहराया है कि गालिब अपना ये अकीदा, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, क्योंकि ये बात, ये नासिक के ही कलाम को फिर से दोहरा रहे हैं। तो गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं। फिलहाल हम लोग इन अशआर की तशरीह यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको ये याद रखना है कि ये मिसरा जो दोनों ही शायरों के शेर का आखिरी दूसरा मिसरा है, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं, आप बेबहरा हैं जो मोतकदे मीर नहीं। किसने कहा है, तो नासिक ने और गालिब ने। फिलहाल इनका नाम भी इस शेर में आ ही गया है। अगर पहला मिसरा नहीं पूछा जाए तब ये सवाल बनेगा। दूसरा शेर जो गालिब ने मीर के लिए पेश किया है वो इस तरह से है, ये बात गालिब ने कही है मीर के लिए। कितनी, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मीर की अजमत का, कि गालिब जैसे आला दर्जे का शायर जो अपने वक्त का सबसे बड़ा शायर था, उसने मीर की अजमत को कबूल किया है और यूं अपने अल्फाजों को शायरी में पिरोया है कि रेख्ती के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। अपने आप से मुखातिब हैं गालिब, इस शेर में अपने आप से मुखातिब हैं, कह रहे हैं
کہ ریختی کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، یعنی اپنے آپ کو ریختی کا استاد سمجھنا بند کرو، کیونکہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا جو ریختی پر کا بہت بڑا شاعر تھا۔ یہاں سے ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ میر کی اہم غزلیں کون کون سی ہے۔ بنا تشریح کے میں صرف آپ لوگوں کے سامنے شعر پڑھ کے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ شعر میں نے یہاں پر اس لیے شامل کیے ہیں کیونکہ یہ میر کے سگنیچر شعر ہیں، یہاں سے ہم پہچان سکتے ہیں میر کی شاعری، میر کی شعر و شاعری کی جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، ان کو انہیں اشعار کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی فوٹو کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش نظر ہے اس طرح سے: الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ دوسرا شعر اس طرح سے ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یہ شاید میرے خیال سے فرسٹ گریڈ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اگلا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، جو تیسرا شعر ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے آج کی کلاس میں شامل کیا ہے وہ ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا، یا تیرا لکھا ہوا ہے، ہم کو تیرا سمجھنا ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ کیا زبردست شاعری کی ہے میر نے، مزہ آئے گا جب اس کی تشریح ہم لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس احساس کو جینے کی کوشش کریں گے کہ کس ماحول میں کس وجہ سے میر نے اس شاعری کو کہا ہے، کیا ہے، قلم بند کیا ہے۔ سب سے اہم آج کی کلاس کا پارٹ، اگر آپ لوگوں نے یہاں تک کلاس کو دیکھا ہے تو اب تھوڑی دیر اور بنے رہیے، کیونکہ اب میر سے متعلق کچھ پی وائی کیوز نمونہ کے طور پر میں نے شامل کیے ہیں جو کہ پورے نہیں ہیں۔ پورے پی وائی کیوز ہم الگ سے کلاس میں دیکھیں گے۔ پہلا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلا سوال: فوٹو کے ساتھ میر نے کون سا تذکرہ لکھا ہے؟ میر نے کون سا تذکرہ لکھا ہے؟ آپشن اے آپ لوگوں کے سامنے ہے: تذکرہ شعراء اردو، نکات الشعراء، گلشن بخار اور ریاض الفصحاء۔ تو میر کا تذکرہ کئی بار ہم لوگوں نے اسی کلاس میں بات کی ہے، میرے خیال سے یاد ہی ہو گیا ہوگا کہ میر کا جو تذکرہ ہے وہ نکات الشعراء 1752 میں منظر عام پر آیا تھا۔ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کس زبان میں تھا۔ اگلا سوال: یہ تمام تر پی وائی کیوز آر پی ایس سی کے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2، یہ سوال آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ اسپیشل اردو 2015 کے امتحان کا پرچہ ہے۔ سوال ہے کہ میر کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے دہلی، آگرہ، لکھنؤ یا علی گڑھ۔ ان میں سے ان چار آپشن میں سے میر کی پیدائش کہاں کی ہے یہ تو آپ لوگوں کو آ ہی گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کمنٹ یہ کرنا ہے کہ میر کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ اس کا جواب ہے میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 3، دیکھیے میں نے کہا تھا نا وہ سوال اتنا زبردست ہے کہ مجھے یاد نہیں تھا اس وقت یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ میر کو کس صدی کا شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ میر کو کس صدی کا شاعر تسلیم کیا گیا ہے؟ 19ویں، 18ویں، 20ویں یا 21ویں؟ تو میر کو 18ویں صدی کا شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ سوال آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ 2013 میں آیا ہوا ہے۔ اگلا سوال اور آج کا ہمارا آخری سوال ہو جائے گا۔ یہ سوال نمبر 4 ہے، یہ بھی آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ 2013 کے پرچہ میں شامل ہے کہ خدائے سخن
میں نے کہا تھا یہ سوال آیا ہوا ہے RPSC میں. خدائے سخن کے لقب سے کون مشہور ہیں؟ ولی یعنی ولی دکنی، غالب، میر اور علامہ اقبال. تو اس کا جواب ہو جائے گا میر. میر کو خدائے سخن کے نام سے جانا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تمام تر فیکٹ اور پوری کلاس سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کو یہ کلاس پسند آئے گی. اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کلاس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور بہت زیادہ ہی اگر پسند آ گئی ہے تو ایک پوزیٹیو کمنٹ بھی کیجئے تاکہ میں اگلی کلاس بنانے کے لیے موٹیویٹ ہو سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی کلاس میں.